मैच फॉर 50 क्वेश्चंस। और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एक और चीज़, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है क्वेश्चंस की, वो ना तो ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है, तो आप उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आप वहाँ पर ढूंढ पाएँ। एंड फॉर फाइंडिंग सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाली डिफ़िकल्टी, यू कैन चेक आउट ड्राइव लिंक, आई विल शेयर इट इन द चैट सेक्शन। वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से OIR के क्वेश्चन लगा सकते हो, बिकॉज इन दैट पीडीएफ क्वेश्चंस आर ऑफ समवॉट सेम लेवल डिफ़िकल्टी हैं उन क्वेश्चंस की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Yeah, Sachin, I would also like to add one thing, that this OIR, it becomes more important when you once you get screened in. Like you have to fill a this what I forgot, yeah, PIQ form, that is personal information questionnaire, and these you have to fill two copies. And this form will go to your interviewing officer as well as your psychologist as well as your GTO. And on top of that, you will be given rating, like if you perform very well, as I told you, it is percentile based. So if you performed very well, so 1, you will be given an OIR rating of 1. It means that they will somewhere think that yes, this cadet or this candidate is very good in reasoning and those stuff. So that creates an impact in the mind of interviewing officers and the other officers also. So don't take it lightly. It is easy, but try to perform as well as you can. Yes, Yes, very well very said well by said both by of the both of the speakers. speakers. As As it is it is important important because it because shows it your shows your IQ IQ level, level, and it and shows it that shows that you are you able are able to to solve solve questions questions within within time, and time, and you are you are better than better than others and others at that at level. that level. Okay, Okay, so so if if anybody have anybody has any any doubt in doubt in OIR OIR or or anything, they anything, can they ask can in the ask in the chat chat section. section. But But please please keep that keep in that in mind mind that it that should it be should be relevant. relevant. Please Please ask ask in the in the chat chat section, section. please. Okay. Okay. Any book Any for book for there are there so are many so many PDFs PDFs present there, present there, even in the even in the groups. groups. If you If will you will check out, check out, one is one of is of SSB SSB Crack. Crack. I would, I would, if I if I remember, remember, and it and is it of is of like like similar similar level. level. And for And for practice, practice, practicing practicing question, question, R.S. R.S. Agarwal and Agarwal and Aryan Aryan also have a also have book a of book of SSB, and they SSB, and have they a have a uh, OIR OIR booklets as booklets well. as well. So you So you can can practice that. practice that. It is It is after after getting getting screened in screened in uh, uh, PIQ form, PIQ you will form, you fill will fill afterwards. afterwards. Okay. Okay. Sorry, I Sorry, I haven't haven't checked, checked, but but for for practice, I practice, I believe any believe kind any of kind of reasoning reasoning question or question or books, books, it it will will just just increase your increase level. your level. So So just just don't think don't think about it about that it much. that much. Just Just keep keep practicing. practicing. इसको इसको ज़्यादा ज़्यादा आपने आपने seriously भी seriously नहीं भी लेना नहीं है, लेना पर है, इसको पर इसको हल्का भी हल्का नहीं भी नहीं छोड़ना है. छोड़ना. Just keep Just keep practicing practicing one, one or two, three two, three booklets a booklets day, a day, and and then it then will it be will good be for good you for you if you if have you have 1 or 2 1 or 2 months months for for SSB. it. Screen. It It only only increases increases if you if are you are in in borderline. I borderline. have I have told you, told you, please please keep the keep the relevant relevant doubts. doubts. I have I have told you told so you many so many things things in the in the starting starting only. only. Okay. Okay. So So now now let's let's go to go the to the PPDT part. PPDT part. Before Before PPDT PPDT part, I will part, I will also also like to like tell to you tell you some some things things which which you know which which make you make you look look more more serious. serious. Of Of course, course, PP PP in in stage one, stage one, you you can't take can't take any any kind of kind of chance. chance. You You should be should be looking looking disciplined, disciplined, not the not look the I look have. I have. You You should should be be clean clean shaved. shaved. Your Your hair hair should should be be cut cut properly. properly. Why? Why? Because Because all of all this of this shows your shows your discipline in you. discipline in you. Whether Whether it's your it's your clothes, clothes, proper proper formal formal clothes, clothes you must you must have. have. Why? Why? Because it Because will it show will show how how much much you are you are disciplined disciplined towards your towards goal. your goal. In, of In of course, you course are you are going in a going in a army army area area or or a a defense defense area, area, then you then you must must be be acting acting in a in a disciplined way, disciplined and way, you and you must be must be looking in a looking in a disciplined way disciplined as way well. as well. And And don't don't think of think of SSB as a SSB as a test. test. Think of Think it of it as an as an assessment. assessment. Because Because if you if will you will think of think of it it as an as an assessment, assessment, you will you be will be able to able to focus focus in a in a better way. better way. एंड एंड डोंट गेट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्टेड. बिकॉज बिकॉज जैसे ही जैसे अगर ही अगर हमारे हमारे दिमाग में दिमाग कोई में भी कोई चीज़ भी अगर चीज़ हमारे अगर हमारे दिमाग में दिमाग में टेस्ट करके टेस्ट आते करके हैं ना, आते हैं ना, मोस्टली मोस्टली वी वी फंबल. फंबल. So So you you don't have don't to have to fumble at fumble that at point. that point.
just think of it as a necessity, and yeah, improve your personality. For improving your personality, it can be physical appearance like your dressing sense or your personal hygiene or your body language, or it can be your code of conduct as well when you're speaking or your posture while speaking. So don't have to uh, change change yourself. yourself. Therefore, start being disciplined before SSB exam. अगर आप पहली बार ही अपने क्लोथ्स पहन के जा रहे हो, यू विल बी फीलिंग अनकंफर्टेबल एट एसएसबी एंड दैट्स ट्रू. आपका जितना ध्यान जाना था आपके असेसमेंट में उससे कम जाएगा, बिकॉज यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय योर क्लोथ. व्हाई? बिकॉज यूर इधर यहाँ वो सही से फिटेड नहीं है, या फिर यू आर वेयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम. आपको फॉर्मल क्लोथ पहनने की आदत नहीं है, आपके जूते टाइट. So just keeping that in mind will improve your performance by not distracting you on other parts as well. That is what I would like to tell, because ज़्यादातर ये क्या है, आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा. आई एम नॉट टेलिंग कि हमेशा ही होगा, बट ये कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, देन इट्स एन एंड. आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते ड्यूरिंग स्टेज वन. देयरफॉर इट इज बेटर कि आप खुद को उसी प्रोसेस से अडेप्ट कर लें. आपको आदत नहीं है लगातार लिखने की, आपको लगातार लिखने की आदत डालनी है. आपको बोलने की आदत नहीं है, यू कांट स्पीक फॉर अ मिनट. जो आपको बोलना है अपनी स्टोरी, देन इट इज एन एंड फॉर यू. देयरफॉर यू शुड स्टार्ट अडेप्टिंग योरसेल्फ इन द प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट PPDT. Okay, so first I will ask Sachin to what he thinks about the PPDT test and how he approached the PPDT test, and then Aditya, and then I will tell about myself. Okay, so for PP and DT, first of all, picture perception discussion test starts with showing you a picture for 30 seconds. Then 1 minute is given for you to write gender, age, and mood of all the characters which you have seen in the picture. Thereafter, and also you have to write action into that story page which is given to you in 1 minute. 30 seconds for observing the picture, 1 minute to mentioning gender, age, mood, and action of the story, and then 4 minutes to write your story. So there is, if we see, there is a lot of time to write a story in PPDT task rather than as compared to TAT, where we have to just observe the picture for 30 seconds and have to write straightforward after seeing the picture for 4 minutes. So 4 minutes 4 minutes 30 seconds to write a single story in TAT, whether it's 5 minutes 30 seconds in PPNDT. So there is a misconception that we have to rush through this process. So you need to go very in a calm manner and giving absolute attention to each and every detail which is shown in the picture. When the picture is shown to you for 30 seconds, it is a particular reason कि आपको 30 सेकंड ही क्यों दिए गए हैं, क्योंकि 30 सेकंड ही चाहिए होते हैं psychologically to observe the picture completely, because the picture comes like in PPDT, the picture is hazy, black and white, so it opens up in front of you in layers. So you need to give that 30-second time and your complete attention to the picture for 30 seconds so that you can observe it completely. Yeah, very well said by Sachin. What I will like to add is first means you will get the samples on Google, that what the sheet looks like. It is basically one side, and the space is not so much that you will not be able to write. So means we all meet officers and these things, and they tell that पहले तो यार पेपर भरो, अगर पेपर नहीं भरा है then they are not going to look at the sheet, and like we have given you 4 minutes and you are not able to write half page. So that writing speed that Gautam also told, that is a must for the whole SSB. In your psychology test also, your writing speed will matter. If you have a good writing speed, very good. If you don't have, then please improve it. If you don't have writing speed, then believe me, it is going to be very very difficult to get through. And what basically we have to do, like I already told you that I was screened out. So what I assessed
is I was going too much out of the picture. The story I was writing, it was very much, going out of the picture. You should try to build the story within the picture if it is possible, and you may go out here and there a bit, but try to keep your story within the picture and add as many actions as you can. Like, if you see a if you see a picture in which a injured man is lying, so there someone can write that they called the hospital or ambulance, but the major part is what you are doing, because the hero that you choose, that represent you, what you would have done in that situation. That is what the assessors look for, that यार ये बंदा इस सिचुएशन में क्या करेगा. इट इज नॉट लाइक कि एक स्टोरी फिल्मी टाइप लिख दी, नहीं. द हीरो यू चूज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मीन्स, जब तक ये क्लियर ना हो ना कि वो बहुत बूढ़ा है बहुत यंग है, टेक द कैरेक्टर योर एज, maybe 1 year old, 1 year young, no matter, but take the character your age. You have to write the age of every character, but try to take the character your age. Try to take the hero your gender. If there is a female and a male, for all the male candidates, you take the hero, the boy, and for the female candidates, you take the hero girl, sorry, heroine, and then build a story on that, keeping in mind that the hero represents you. So show all the qualities कि हाँ यार इसने ये किया ये किया ये किया ये किया और ये खुद रिस्पॉन्सिबल है, एंड ही इज डूइंग दिस थिंग्स विद इन द पिक्चर. एंड once again, writing speed, write as much as you can and give an end to the story. आप बीच में मत खत्म करना, give an end to the story, and once you start practicing it, you will get the feel that हाँ इतना टाइम मिलता है अप्रोक्स एंड आई कैन राइट दिस many words. So that half page is enough for your story to start, so many actions to take place and to end. So fill the page and give the actions in sequence, like पहले ये किया, then ये, then ये, then ये, the priority wise. Okay, Sachin, please. No, complete first, complete then. Yeah, so this is all what I was saying. So this time when I got screened in, I kept in mind these all points, and you know this helped a lot. I have talked to officers also, means I have some officers in contact, so they also told me that यार ये करो, represent the hero यार, hero is you, show your qualities, like they say, sell yourself in SSB, वो वाला काम वैसे करना है. Yeah, nice, insightful. And अगर हम बात कर रहे हैं कि writing speed, so Aditya Aman had really fast writing speed. He completed all his 60 SRTs and he was sitting idle watching others, what others are doing. So he really got a fast hand. Now talking about other things, he mentioned about heroes quality represents your qualities in story. Yes, of course, he is absolutely right. And I would like to also present another aspect, that even if there are other neutral characters in your picture, friends, strangers, and if you're writing actions of them also, so those their actions also represent your quality, because at the end of the story or that end of the day, उनके कार्य जो भी उन्होंने किए वो भी तो आपके कलम से ही लिखे, आपने अपने दिमाग से ही बनाए, तो वो सेम उनकी क्वालिटीज भी आपका कैरेक्टर दिखाती हैं, एक्सेप्ट देयर इज सम नेगेटिव कैरेक्टर जो पिक्चर की डिमांड थी. ठीक है, तो जैसे कोई दोस्त या स्ट्रेंजर है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो काम करेगा इसमें भी मेरी ही क्वालिटी दिखाई जाएगी. और ट्राई टू पोर्ट्रे योर इमेज एज ए रियल लाइफ स्टोरी, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका प्रोटैगनिस्ट विल डू एवरीथिंग. ऐसा लिखो कि रियल लाइफ में जैसा होता है कि सब अपने कंधे से कंधे मिलाकर टीम वर्क कर और काम पूरा करते हैं. ठीक है, और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आई हैवंट फिनिश्ड माय
points when I was speaking कि जब आपने अपनी स्टोरी 30 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व की, फिर आपने जेंडर, एज, मूड लिखा, स्टोरी लिखनी स्टार्ट की, तो मैं बताता हूँ कि टाइम यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और टाइम भी बहुत है हमारे पास। तो उसके लिए 30 सेकंड में हमने पूरी पिक्चर देखनी है, सिर्फ पिक्चर देखनी है। फिर अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया बनने लग जाएगा। जब तुम प्रैक्टिस करके जाओगे तो अच्छा ही आइडिया बनेगा, ठीक है। अब उस आइडिया को अच्छे से घड़ना है तुम्हें अपने दिमाग में 15-20 सेकंड के लिए और पूरी एक स्टोरी का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। फिर आप अपना जेंडर, एज, मूड मार्क करो, पिक्चर के एक्शन लिखो और फिर पूरी स्टोरी को लिखो। जब आपने अपनी स्टोरी दिमाग में अच्छे से स्ट्रक्चर करके लिखोगे तो इट वुड बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड, और जब वो एसएसएस पढ़ेंगे तो वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड भी लगेगी। आपने रैंडमली अपने थॉट्स जोट नहीं किए हैं, क्योंकि वो आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एक्शन लिखोगे और उसी तरीके से आपके रिजल्ट भी ज़्यादा लॉजिकल लगेंगे कि ये रिजल्ट होंगे। और एक और बात आदित्य ने कही, टू कंप्लीट योर स्टोरी, यस, टू फिनिशिंग व्हाट यू हैव स्टार्टेड इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक्शन ही ना करते रह जाओ, अपना कर्म का जो फल मिला वो भी क्लेम करके जाओ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Greatly, acknowledged by both of the speakers about picture perception and writing the story. And now I will also tell about my experience or my opinion on PPDP. So first, there are different stages in PPDP. First is picture perception. So for 30 seconds, a picture is shown to you. Mostly in PPDP, it's kind of blurry picture. So they can have diverse stories and diverse ideas from each and every student. Now, something before writing or even pursuing the story, you should have in mind, as told by both of them, is you are the main character, which is the hero is your alter ego. Okay, of course you're not in the story, but its thoughts, its process, its actions are just told by you, are just written by you. So each action of him is your action. The story tells you about your social adjustment factor, which means that how you adjust yourself in any kind of situation. What a story is. It is nothing but just a situation. A situation where a person is standing, a situation where it is a car accident, maybe a situation of any kind. It can be war or anything which you perceive. So how do you adjust in the situation which you perceive? That is the main thing. And there should be a situation and theme about the story which you'll be writing around. Okay, now let's talk about perceiving the picture. So there are 30 seconds given to you to perceive the picture clearly. So in which you have to find out the mood, age, gender, what is going in the background, and the hero of your story which will be leading the story. Once you are done with it, you can start thinking about what kind of story you will write. Like this, what would be the structure of your story? The story has three components: presentation, theme, or it can be execution. For presentation, first thing is structure. आपकी स्टोरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिजल्ट पहले बता दिया then you are writing the actions, because many times many candidates fumble. उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, at the moment बस they go blank out, और जब उनको ध्यान आता है they just start writing. पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस कहीं से मैच ही नहीं करता. तो फर्स्ट थिंग इज आपका स्ट्रक्चर स्टोरी का क्लियर होना चाहिए, और वो होगा कैसे? विद प्रैक्टिस ओनली. आप बहुत बार गलतियां करोगे, आप देखोगे यार मैंने ये वाले पॉइंट्स तो मिस आउट ही कर दिए, या फिर द स्ट्रक्चर इज नॉट गुड. आपने पहले बैकग्राउंड बताना है, देन आपने बताना है प्रेजेंट, देन आपने बताना है व्हाट वाज द रिजल्ट और द आउटकम. बहुत बार इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है. आपकी राइटिंग स्पीड and how good your writing is, at least understandable होनी चाहिए जो बंदा पढ़ रहा है. कहीं ऐसा ना हो कि आप ही ना पढ़ पा रहे हो कि आपने क्या लिखा एंड आप ही ना समझ पा रहे हो, दूसरे के थ्रू छोड़. तो therefore it is very much important to practice, क्योंकि धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी, you will be able to adapt with that timing,
only then you will be able to write in a legible handwriting. Then time and space management. Once you get nervous, mostly समझ लेना there is a dead end for you. Why? During story writing, आप सही से एक तो your work should be neatly done. ऐसा नहीं है कि दो सेंटेंसेस ही एक ऊपर लिखा है, एक इसको बीच में ऐसे ही घुसेड़ दिया, ना आपको समझ आ रहा है आपने क्या लिखा, ना वो समझ पाएगा. ठीक है. सो देयर शुड बी टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट. टाइम व्हाई? बिकॉज आपको एक डिफाइंड टाइमिंग दी गई, फर्स्ट 30 सेकेंड्स, देन 1 मिनट, देन टू राइट स्टोरी 4 मिनट. तो आपको अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज करना है. एंड देन द फॉर्मेट एंड द लैंग्वेज. कभी भी फॉर्मेट वाइल राइटिंग द स्टोरी आप ये ध्यान रखिएगा, यू शुड राइट इन द पास्ट टेंस every time, because you are just telling what has happened, okay, in that picture. Therefore आपकी हमेशा past tense में होनी चाहिए picture. Now the theme के ऊपर हम बात करते हैं, तो theme can be quality wise और level wise. आपकी theme की quality क्या है, and then आपकी theme का level क्या है. For some story it can be on a national level as well. For some story it can be on a only in a village or only at the city. At some story the quality of theme can be social, but at some story it will be individual, but it should always be relevant. ऐसा नहीं है कि आपने सोशल स्टोरी लिख ली तो आपका पक्का ही हो जाएगा कि यस यू आर गेटिंग स्क्रीन इन. नो, बिकॉज इट माइट बी नॉट रेलेवेंट टू द पिक्चर. आपको पिक्चर एक बंदे की बैठे हुए की आई, उसके सामने किताब खोली है, आपने उसको सोशल वर्क पे लगा दिया, इट्स नॉट रेलेवेंट. Therefore your story should be or the theme should be practical as well as relevant. And third is execution. Execution में आ जाएगा how well you executed your plan. आपने पूरी स्टोरी कंप्लीट की या नहीं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ही के लिए नहीं सभी के लिए टाइमिंग सेम है. आपको कोई कम टाइम नहीं दिया जा रहा है. देयर इज अ पर्सन जस्ट इन दैट रूम ओनली जिसने स्टोरी पूरी कंप्लीट कर ली टाइम से पहले. देन व्हाई वुड दे चूज यू? ओके, तो आपको स्टोरी अपनी कंप्लीट करनी है. उसके साथ साथ आपने एक्शंस किस लेवल के लिखे, कितने लिखे, दैट आल्सो डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर थीम एंड योर प्लान. So these are the things about writing the story. Now let's talk about more in depth. So first 30 seconds I told you it is about perceive. तो आपको इस 30 seconds में, because you have 1 minute later as well, ये 30 seconds आपको जरा सा भी वेस्ट नहीं करना. You just think and see each and every minute detail of the picture. आपको हर एक चीज पे ध्यान देना. Why? It will show your observational skill. कि भाई पूरे ग्रुप में, मान लो एक स्टोरी में, एक पिक्चर में एक ऐसी चीज है जो पूरा ग्रुप नहीं देख पाया, बट यू हैव सीन दैट एंड यू रोट इट डाउन इन योर स्टोरी. आपका एक अलग इम्पैक्ट रहेगा. व्हाई? बिकॉज यू वर अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यू ऑब्जर्व दैट थिंग. देयरफॉर आपको ईच एंड minute detail you have to check in the story. Next thing is in the another 1 minute, 1 मिनट आपको बॉक्स फिल करने को दिया जाता है. बॉक्स फिल करने का क्या होता है? आपको मूड लिखना होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनके मूड, उनकी एज और जेंडर, और आपको एक्शन लिखना होता है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो आपको इसमें ही 40-50 सेकेंड्स लग जाएंगे इजीली, बट मोस्टली इन अ पिक्चर आपको 20 to 25 सेकेंड्स ही लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी खासी स्टोरी की एट SSB. तो सिर्फ वो 25-20 सेकेंड का तो काम हो गया. उसके बाद क्या? उसके बाद आपको उन 30-35 सेकेंड्स में एक बार पूरी स्टोरी अपने दिमाग में कि हाँ माई स्ट्रक्चर वुड बी दिस, प्रॉब्लम ये होगी, मेरे हीरो के एक्शन या हीरोइन के एक्शन ये होंगे, एंड देन दैट विल बी द आउटकम. ये 30 to 35 सेकेंड्स में आपके दिमाग में अगर आपने एक बार इसको चला लिया, एट टाइम ऑफ राइटिंग इन 4 मिनटों में आपको सिर्फ लिखना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
mostly people why they most of the candidates why they are not able to complete the story because वो उन 4 मिनट में भी सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या लिखेंगे, हमारा आउटकम क्या होगा, प्रॉब्लम ये बनाए नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पीपीडीटी में एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, देन उसका यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 30 सेकेंड्स में लिखने लग जाओ, नो, राइट ओनली एट 4 मिनट, बट वो 30 सेकेंड्स को यू कैन यूटिलाइज टू मेक योर स्टोरी राइटिंग बेटर एंड एफिशिएंट। इससे क्या होगा कि आप कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन भूलोगे नहीं, आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपने एक बार दिमाग में चला लिया, इशू ये हो रहा था, हीरो ये था, उसने ये काम किया, डन, उसने and the issue was solved. So that is how you have to think in your mind at that 1 minute और जितना भी spare time बचे। Yes, very well said by Sachin. Practice for making break again with the task. So जब आप ये कर लोगे, it will be very easy for you. Now while writing the story, first thing, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। किसी की SSB 1 महीने में होंगी, किसी की 2 में, किसी की 3-4 महीने में, इट डजंट मैटर। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, अगर उसने 1 महीने में भी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, ही विल हैव बेटर राइटिंग स्किल्स देन। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आपकी रेस खुद के साथ है, ना कि किसी दूसरे के साथ। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपकी राइटिंग एलिजिबल होगी, साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्पीड भी फास्ट होगी। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, इट इज अ वेरी गुड स्किल दैट यू कैन राइट फास्ट। ये आपको हो सकता है एसएसबी में तब भी स्किन आउट होगा, डजंट मैटर, बट आपको ये स्किल्स लेटर इन लाइफ एट एनी पॉइंट काम आ सकते हैं। तो थिंक ऑफ इट लाइक इन दैट वे इंस्टेड कि यार आई डिडंट गॉट स्क्रीन इन एंड डोंट गेट नर्वस। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत हो सकता है कोई प्रीवियसली रिकमेंडेड हो सकता है कोई रिपीटर हो, स्क्रीन आउट हो, इट डजंट मैटर। आप जो भी हो, आप फ्रेशर हो, आप स्क्रीन आउट हो, आप रिपीटर हो, आप रिकमेंडेड हो, टेक इट एज अ फ्रेश स्टार्ट। आपको किसी का कुछ नहीं सुनना है। वट एवर यू हैव बीन डूइंग बिफोर द SSB, जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड कीप डूइंग दैट ओनली, जस्ट डू दैट। अगर आपने कहीं से गाइडेंस ली है, जस्ट डू दैट ओनली, इट डजंट मैटर। वो बोला भाई किसी को बोलने मत देना। आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। मेरी फर्स्ट SSB थी और मैंने यही गलती की, मैं GD को डोमिनेट कर रहा था। क्यों? बिकॉज एक रिपीटर ने आके मेरे को बोला था, मैं भूल गया अपनी सारी लर्निंग, इससे पहले जो मैंने पढ़ा नहीं। उसने बोला कि ग्रुप को बोलने मत, ग्रुप में ना किसी और को बोलने मत दियो, चढ़ने मत दियो। आई वाज लाइक ओके, और मैंने चढ़ने नहीं दिया, और व्हाट वाज द रिजल्ट? आई वाज फीमेल। Therefore, never ever take any advice at that point. Before PPDT, कुछ नहीं। Don't, मैं ये नहीं कह रहा don't talk to them, but what you can do, while after writing picture, you can narrate each other's story to each other. Okay, you can narrate with the by you count whether it's within 1 minute or not. Okay, only that, but no advices, nothing, because it will only distract you. आपका माइंड को कंफ्यूजन में ला देगा, वो शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट, so never think about it. While writing story, first you have to write about the background or the hero. So you can start with it like first you wrote the name, or there are different formats, it depends upon you. But what I follow is that you write the name and the age of the hero, and then you tell about the occupation or whatever he is doing, and after that you tell what kind of issue he felt or he saw that others are feeling or is hampering others, and therefore what will be the next course of actions of him, and what will be the outcome. So basically that is that format I follow. Different candidates follow different format according to them, but I just wrote what I follow, so I feel comfortable with it. And after that you will be given 4 minutes first, for 5 and 30 minutes का पूरा PPT होता है, 30 minutes for perception, 1 minute for writing action in the filling the box, and 4 minutes of story. After it आपकी शीट आपसे ले ली जाएगी, and then you will be sent for the GD. So now let's talk about GD and starting with the Sachin. बिफोर गोइंग टू GD, मैंने थोड़े नोट्स लिए भाई जब बोल रहा था,
trust what you have learned or the way you have been trained in SSP, because it's too late to change the explain then and there. Before going ahead, let us take some doubts from the chat section, which is the first doubt is regarding the PIQ form. Do we need to fill it on the first day or after getting screened in? PIQ is generally filled after getting screened in most of the time. For sure. Any other doubt, please? If you guys have any kind of doubt, ask it now for story writing part. यस, अभी जितने चैट सेक्शन में उसको सबको क्लियर करते हैं. Getting OIR 1 or 2 increases the chance of getting screened in. For example, if I'm yes, of course, if you are having better OIR, then you will be preferred over other candidates. Okay, ये OTA वाला SSB date का doubt section में Mavericks में. There will be a lot of person in picture, so we have to write the age of no. If there are like a bunch of people showing in the picture or a crowd is there in the picture, so only tell the gender, age, mood of the characters which are related to your story, or 3 4 5, or you other than that you can write उस स्क्वायर बॉक्स के नीचे लिख सकते हो एंड अदर 100 to 150 मेंबर्स या कैरेक्टर्स. ओके, if we cannot deliver all the action written at seat by us, then what should we do? Okay, अगर तुम अपनी स्टोरी पूरी नहीं कर पाए तो SSS also say कि if you were not able to complete your story, you can complete it in the narration part. और narration part में तुम अपनी स्टोरी ये सेंटेंस बोल कर कि I was not able to complete my story, so these are my, तो उसमें एक दो सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो. Yes, Gautam, you had to speak. Yeah, there is also a doubt of Weber Pandey. Is it fine to write our name as the hero of the story? So I believe that you should not write your name, because it's somewhere you don't have the lack of you have the lack in creativity. आप एक नाम ही नहीं ढूंढ सकते कोई दूसरा है for writing the story. ठीक है, आपने तो आपको बस सोचना था that he is your alter ego, आपने खुद को ही बना दिया. तो it is better to take other name. तो अब इतनी तो क्रिएटिविटी होगी ना, अपने दोस्त का नाम लिख दो, क्या होगा. बट it's better to write other names, in my opinion, instead of writing your name. Yes, and also there is another reason कि अगर आप स्टोरी लिख रहे हो अपने हाथों से, काल्पनिक स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें भी आप खुद को हीरो बनाना है, जरूरी है. Okay, Himanshu asks, sir, as you told about the social story, sometimes while practicing I get stuck into a single type of social issue and resolving it. How could I resolve this thing? So for this you can improve your social awareness कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कचरे की, पानी की, बिजली की, गड्ढों की, बहुत बहुत समस्याएं, वुमेन एम्पावरमेंट की. तो वो आप अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हो बाय टॉकिंग टू मोर पीपल, और स्कीम्स देख सकते हो क्योंकि स्कीम्स प्रॉब्लम के पे ही बनी होती है. ये इट इज जस्ट अबाउट की प्रैक्टिस. आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी स्टोरीज आप देखोगे उतनी ज्यादा आपको पता लगेंगी सोशल इशूज. आप लिख सकते हो, अगर आपको एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अगर मान लो आप सोशल इशू एक ही पे, मान लो एजुकेशन पे अटक गए, आप एक बार लिख लो कितने कितने टाइप के सोशल इशू हो सकते हैं, एंड देन यू कैन गो विद इट. एंड आदित्य भाई आल्सो वांट टू स्पीक. आदित्य. Yeah, one thing, sorry, I would like to add कि when you write the story, make sure that the picture which is shown on your screen, it comes in your story at least once. It should be visible that yeah, तेरे story में जो picture हमने दिखाई है वो आ रहा है, so that they can also relate कि हाँ this was this time, तुम्हारे story में इस time this picture has come, so that you know to keep that story in the picture only. Or as Gautam bhai said कि course of action, that is very important कि यार you don't explain the problem too much that you don't get time to write the actions. And course of actions is like the steps are important, that in which order you write the action, as you already briefed very well. I would not like to elaborate it. Yeah, thank you. Yeah, on to the next doubt. Is there any need to add action story? Of course there is need भाई, वहाँ पर कॉलम होता है पर्टिकुलर एक्शन लिखने का, तो वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा. And
साल्वी हैव आस्क्ड वी आर नॉट एबल टू राइट फुल स्टोरी। हाँ, तो नरेशन के टाइम तुम अपनी स्टोरी पूरी नरेट कर सकते हो। मोस्टली वी गेट अ ब्लर पिक्चर, सो इफ यू डू नॉट गेट एनी आइडिया देन व्हाट वी कैन डू। नहीं होगा ऐसा, और ये नहीं होगा, ये विश्वास रखो। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखो कि क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी इज समथिंग, गांव में बोलते हैं कि आलस, दो वर्ड हैं याद नहीं आ रहे। आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, दैट्स व्हाट। नहीं, वो ऐसे हैं कि आलस और ठालापनी क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं। मतलब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को, जब नए आइडियाज आते हैं, तो ट्राई टू गिव योर ब्रेन दैट स्पेस टू थिंक क्रिएटिवली। तो पीपीटी की पिक्चर्स शो हो रही हो उससे पहले, डू नॉट कीप योर सेल्फ बिजी in thoughts, in talking with people. So try to keep yourself focused in the present moment. Do not think, be like a sant, meditate करो पिक्चर से पहले, तो फिर आपको आइडियाज आएंगे। और do not also rush to think for an idea, just observe the picture, and when you will be given 1 minute to write this and that, then you can think for an idea. Aditya, want to speak something? या ये प्री कंसीव्ड आइडिया के बारे में बता रहा था। जैसे यू यू ऑल हैव a group, this is a group, you can practice. One thing you can do to get more ideas is that when you practice in group, you listen to other story कि यार ऐसा भी तो हो सकता है that he has or she has written a better story than you. So there is no problem in taking his or her idea on that story. Or you can take, pictures are of category कि हाँ यार दो आदमी है बात कर रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे, कभी बाहर खड़े होकर बात कर रहे। सो देयर आर डिफरेंट आइडियाज इन डिफरेंट माइंड, सो यू jot it down, all the ideas in your group. So this way you can get, theme, that theme of the story. You will be able to get more and more कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और you will be lucky if you get, this picture that you have already discussed in your group. तो यहाँ पे वो होता है कि यू जो पहले से सोच के जाते ऐसा आएगा तो ऐसा ही लिखूंगा, दैट डज नॉट वर्क, क्योंकि वहाँ कुछ नया ही दिखाते हैं हर बार। या इट इज ट्रू। आप ऐसा मत लेके जाओ कि हाँ मैं यही स्टोरी लिखूंगा, बट इस माइंडसेट से जाओ कि अगर कोई डिफरेंट भी आई तो इधर आई कैन मॉडिफाई और आई कैन राइट अ डिफरेंट स्टोरी। आपका दिमाग इतना भी भरा हुआ नहीं है कि आप 10-15 स्टोरीज भी अपने दिमाग में नहीं रख सकते, ठीक है, कोई ना कोई मैच कर जाएगा। बट इट इज बेटर टू नॉट टू टेक प्री कंसीव्ड आइडियाज, बट द यू कैन से आप उनको और क्रिएटिव बना सकते हो rather than writing just the same story, and that can also help. and अगर आपने पहले से ही कोई स्टोरी, मान लो कोई पिक्चर देख रखी है और काफी सिमिलर है, देन ऑफ कोर्स इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप उसको लिख भी सकते हो एंड थोड़ा और मॉडिफाई करके आप, क्योंकि वेन एवर यू राइट अ स्टोरी आपको हमेशा फ्लॉज निकालने वाइल प्रैक्टिसिंग, वाइल इन एसएसबी नो, बट वाइल प्रैक्टिसिंग आपको ये देखना है कि आखिर इस पिक्चर में भी कहाँ गलती है। इट माइट लुक परफेक्ट टू यू बट कहीं ना कहीं गलती होगी। शो इट टू डिफरेंट पीपल, शो इट टू डिफरेंट कैंडिडेट, तब वो आपको बताएंगे यार आई पी, तो आपको पता लग पाएगा दैट यू कैन इम्प्रूव, यू कैन स्टिल इम्प्रूव ऑन इट एंड कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। so that can be the thing. And what to exactly write in the action box, हाँ तो action box उतने डिटेल में नहीं बताया। तो इन द एक्शन बॉक्स आपको ये लिखना है कि व्हाट एग्जैक्टली राइट नाउ इन द पिक्चर इज गोइंग ऑन, कि आप अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी जो ये पिक्चर है ये एट दैट मोमेंट क्या एक्शन हो रहा है। इट शुड नॉट बी मोर देन 3-4 वर्ड्स, लाइक इट शुड बी द मेन एक्शन, कि आखिर आपके हीरो ने किया क्या। इफ इट वाज सॉल्विंग एनी सोशल इशू, तो कौन सा सोशल इशू सॉल्व किया, you can write about it, improving sanitization or the improving cleanliness, and going on a trekking with friends, or whatever the main action or whatever the main issue is being solved, you can write that in that. And if you have issue in the narration part,
Of course, we will be talking about narration higher, so ask doubt at that time. But if you have the problem, keep practicing, and we'll talk about in that in depth right now, and how that's, I believe. If any points to be added by Sachin. ओके, ऑल्सो अभी हम ना अपना डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि हम एक ही पॉइंट पे या एक ही जगह एक टास्क के बारे में सारे पॉइंट्स बता पाए। तो अभी हम बात कर रहे थे 30 सेकेंड्स ऑब्जर्व, राइट द स्टोरी, और हमने स्टोरी की भी बात की, और बात करेंगे स्टोरी पर, और फिर जाएंगे नरेशन पर, फिर जाएंगे डिस्कशन पर, ताकि हमारा आज का सेशन ऑर्गेनाइज मैनर में आगे बढ़े, जैसे कि हम स्टोरीज लिखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट डाउट इज मेन इश्यू विद द नरेशन पार्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाउ टू अवॉइड प्रीकंसीव्ड आइडियाज इन स्क्रीनिंग। ओके, and if there are 5 to 6 characters, then we have to mention them all. Okay, so abhi I'll say my piece on story, or I will also include your both 2 recent doubts story. So as mentioned by Gautam, that we have to structure it in our brain before writing, so that we can हम उसे लिख पाएं अच्छे से, और हम मिसऑर्गेनाइज तरीके से आगे पीछे सेंटेंसेस ना लिख दें, क्योंकि हमने दिमाग में पहले ही स्टोरी अच्छे से सोच रखी है। ओके, और ऑल्सो बात हम करते हैं कि थीम्स कैसे लिखें। सो इट्स बेटर इफ यू राइट सोशल थीम्स एंड मोर कॉमन जनरल स्टोरी। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर तुम पीपीडीटी में एक कॉमन स्टोरी या फिर एक कॉमन थीम पे या फिर एक कॉमन आइडिया पे स्टोरी लिख के आओगे ना, दैट वुड बी मच बेटर। व्हाट आई मीन टू से दैट, कि अगर कोई हॉस्पिटल का सीन है, या फिर कोई बेड पे लेट रहे हैं और ऐसे 2-3 बेड्स हैं, तो यही होगा, ज़्यादातर सब बंदे ब्लड डोनेशन कैंप बनाएंगे, और भी मतलब ऐसी जनरल थीम्स होती हैं, और मैं कहता हूँ कि आप इन्हें अवॉइड ना करें, आप भी वही बनाएं, ताकि यू विल गेट हेल्प इन डिस्कशन एंड नरेशन पार्ट, आपकी स्टोरी बहुत कॉमन बने। यस, सो द की हियर इज कॉमन थीम बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस। लाइक आप और मेटिकुलस तरीके से अपने एक्शंस लिख सकते हो, और इंसाइटफुल तरीके से आपके एक्शंस को रिफाइन करके लिख सकते हो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप अपने प्रोटैगनिस्ट को सब कुछ बना दो, नहीं, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को नहीं, जितने भी आप कैरेक्टर्स, न्यूट्रल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो, आप सबसे अच्छे काम करवाओ, ताकि आपका ब्रेन दिखे कि आप कोऑपरेटिव तरीके से और ये भी सोचते हो कि दूसरे में भी पोटेंशियल है, नॉट इन जस्ट यू। ओके, सो दिस इज अबाउट थीम, कि हम थीम कैसे लिखें। द थीम शुड बी common, socially relatable, and with good quality of actions. Conclusion में, do not boast, do not brag, do not flaunt your abilities, just try। जब हम काम करते हैं तो हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं ताकि वो काम हो जाए, दैट्स सिंपल, राइट? हम वो काम इसलिए नहीं करते कि my mom will pat my back or the society will give me Padma or whatever that is। तो हम अवार्ड, रिवॉर्ड्स, सैलरीज के लिए कम काम करते हैं, एज सीन इन सोशल वर्क। सोशली हम इसलिए काम करते हैं कि बस ऐसा हो जाए, मैं साफ सफाई इसलिए कर रहा हूँ कि ये साफ जगह बन जाए, दैट इज माई रिवॉर्ड ओनली। तो कंक्लूजन या फिर एंड में आप ये लिखने की कोशिश करो कि आपने काम किया तो कर्म से क्या फल मिला, या फिर क्या अच्छा चेंज आया सोसाइटी में। डू नॉट ट्राई टू ब्रैग कि ड्यू टू हिज हार्ड एफर्ट्स इट वाज बीइंग मेड पॉसिबल। तो वहां पर भी आपने दिखा दिया कि आपने सिर्फ अपने बंदे को चमकाया है वहां पर स्टोरी में। नो, ट्राई टू, इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं कि he thanked his team, he thanked his fellow people who helped to make that thing possible। और ये तो हो गया thanking your team and having a gratitude or grateful nature towards others। प्लस में आप ये भी लिखे कि आपका काम का रिजल्ट क्या आया। सो दैट्स अबाउट रिजल्ट, दैट्स अबाउट कॉमन थीम, और एक्शंस के बारे में हमने बात कर ली। एंड आई हैव ऑल्सो अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट। हाँ, अभी हमने पिक्चर देखी, तो पिक्चर पर ज़्यादातर डाउट होता है कि हाउ टू मेक अ स्टोरी विच इज़ प्रेजेंट या रिलेटेबल। ठीक है, रिलेटेबल स्टोरी वही होती है क्योंकि हम रिलेट किससे कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर रिलेटिंग द स्टोरी विद द पिक्चर विच वाज शोन टू अस। सो
the picture should be the source of the story. वो पिक्चर सोर्स तभी लगेगी जब हमने ट्रूली उस पिक्चर से बनाई है स्टोरी. तो फॉर दैट यू कैन आपको जब पिक्चर देखना है और सोचना है कि मुझे स्टोरी क्या बनानी है, तो ट्राई टू डू वन थिंग कि जो पिक्चर में क्रिया हो रही है या फिर जो सिचुएशन दिखाई गई है, उस सिचुएशन में क्या एक्शंस किए जा सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर्स आर ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट पिक्चर जो होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको बताती हैं कि स्टोरी क्या बनने वाली है, जैसे रोड एक्सीडेंट, तो वो साफ साफ बता रही है कि क्या करना चाहिए हीरो को वहाँ पर. और अगर कहीं पे आग लगी है तो दैट इज ऑल्सो अ क्लियर पिक्चर कि तुम्हें क्या करना है आगे. लेट अस नॉट अबाउट सेकंड काइंड ऑफ पिक्चर, न्यूट्रल पिक्चर्स, विच आर द रियल गेम चेंजर्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, आप कुछ भी ले सकते हो. तो उसमें आपको ना ऑब्जर्व करना है पूरी पिक्चर को. ट्राई टू ऑब्जर्व the dressing sense, the hand postures, or the position, or the way the character is sitting, behaving, looking, and कहाँ पे बैठे हैं, बैकग्राउंड कैसे है. तो वहां से आप देख पाओगे कि इस सिचुएशन में मेरा जो कैरेक्टर है, मैं देख पा रहा हूँ वो क्या क्या एक्शंस कर सकते हैं. इफ ही इज रीडिंग अ बुक, सो इट वुड बी, द स्टोरी वुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड टू द पेन एंड पेपर. चाहे उस पेन एंड पेपर से आप सरकार की बजट बनाएं, या फिर अपनी सोसाइटी के लिए पॉलिसी बनाएं, या फिर अपने लिए ही खुद का ब्लॉग लिखें, ऑटोबायोग्राफी लिखें, रिसर्च करें, कुछ भी करें, पर उस पेन और पेपर से होना चाहिए, विच वाज शोन इन द पिक्चर. सो माय पॉइंट इज ट्राई टू मेक योर स्टोरी आउट द पिक्चर. हम कई बार क्या करते हैं कि हमारे पास 15-20 नहीं गौतम, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं दिमाग में हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होती हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि इनमें से एक दो स्टोरी ये थोड़ी सी चिपक जाए इस वाली पिक्चर के साथ. और मैं ये करूँगा कि स्टोरी लिखते वक्त कोई एक सिचुएशन ऐसी डालूंगा कि वो पिक्चर वहाँ पे रिलेट हो पाए. बट वो एक पिक्चर अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो साइकोलॉजिस्ट विल कैच यू कि ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और इसने बस एक सीन ऐसे दिखाया है, एक्चुअली इसके दिमाग में स्टोरी पहले से थी और इसने बस ऐसे मैच बनवाया उनका. सो instead of that, if you will go other way around, और पिक्चर से स्टोरी आएगी तो वो अलग होगी. और क्यों अलग होगी? क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ स्टोरी की प्रेजेंट में जो एक्शंस हो रहे हैं वो रिलेटेबल होंगे जो पिक्चर दिखाई गई है, जो पिक्चर में वहां पर प्रोटैगनिस्ट बैठे हैं, किस रिसोर्सेज के साथ बैठे हैं, उसके पास गन है या फिर उसके पास पेन है या फिर उसके पास झाड़ू है, मतलब वॉट एवर दैट इज. तो उससे साफ पता लग जाएगा कि आपकी स्टोरी प्री कंसीव्ड है कैसे हैं. सो टू मेक ए प्रेजेंट स्टोरी, ऑब्जर्व द पिक्चर thoroughly and try to write the story most of the time into that present situation which was shown into the picture. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें स्टोरी लिखनी होती है 3 पार्ट में, ऐसे जैसे गौतम भाई ने बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में लिखनी है, क्योंकि स्टोरीज क्या होती है, कहानी, नरेशन होती है, तो पास्ट एक्टिविटीज, तो वो पास्ट टेंस में ही लिखनी है. अभी जब मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बोल रहा हूँ तो आई विल नॉट बी रेफरिंग टू इंग्लिश टेंसेज, आई विल बी रेफरिंग टू द टाइम फॉर्मेट एज पर द पिक्चर. जैसे अगर मैं फ्यूचर बोलूंगा तो पिक्चर के आगे क्या होगा उसको मैं फ्यूचर बोलूंगा, पिक्चर से जो पहले हुआ उसको मैं पास्ट बोलूंगा. सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. पास्ट को 2 लाइन, फ्यूचर को 2 लाइन में लिखना है, प्रेजेंट को मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में तुम्हें लिखना है. सॉरी आई एम बोरिंग यू और बहुत लंबे आंसर दे रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी. तो जो पिक्चर में दिखाया गया उस पिक्चर की सिचुएशन तक कैसे पहुंचे वो आप इनिशियल 2 लाइन में लिखो, और फिर उसके बाद में आप उस क्रिया जब कर रहे हो, आपका जो कर्म कर रहे हो, वो आप सिचुएशन जो दिखाई गई पिक्चर में उसमें क्या कर्म कर सकते हो उसको एलेबोरेट करके लिखो. हैविंग डन दैट, आप फिर जब बाद में 3-4 लाइन में कंक्लूड करो तो आप पिक्चर क्या जा सकते हो और बता सकते हो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस या फिर क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे होंगे. So that would be a good structure to make a relatable and present story. Is that clear to everyone? So ये तो हुआ प्रेजेंट स्टोरी लिखने की बात. अभी हम बात करते हैं, हाँ, तो हम एक और पॉइंट किया, अगर आप रिसोर्सेज जो भी पिक्चर की सिचुएशन में रिसोर्सेज दिखाए गए हैं अगर आप वो अपनी स्टोरी में इंक्लूड करोगे तो दैट विल प्रेजेंट यू
एज ए ऑब्जर्वेंट कैंडिडेट एंड ए रिसोर्सफुल कैंडिडेट, कि जिसको जो भी दिखाया गया उसने सारे रिसोर्सेज या फिर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. सो आई गेस आई हैव कवर्ड. Aditya, if you have anything to add on story part, then you can add, and after that we will go ahead. नहीं भाई, अब डिस्कशन कर लेते हैं. डिस्कशन, नरेशन, दैट पार्ट वी शुड डिस्कस. हाँ ठीक है. तो अभी हम SSB के उस वाले होल से निकले हैं और गौतम हमें नरेशन करना है. सो अभी नरेशन पर बात करते हैं. फर्स्ट गौतम, देन आदित्य, देन मी. Okay, so once you are done with the story writing, तो आपका groups divide होंगे, and after that you will be taken to narration. And for narration, mostly they take around 15 candidates, 12 to 15, or sometimes according to the batch. अगर batch में ज़्यादा होते हैं, it can be up to 17 and 20 as well. Many times it has happened. तो उधर आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने बच्चे ले रहा है या नहीं ले रहा है. You should only focus on yourself and your performance only. And after that, जब आपके ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे, you will sit in a semi circle जब आपको बुलाया जाएगा. And once आप इसके बीच में आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, so at that time what you can do is that you can practice. कैसे करनी है? बहुत सारे बंदे होंगे, वो एक दूसरे को बोलेंगे, भाई तूने क्या लिखा, व्हाट यू हैव रिटन इन द स्टोरी, अरे मेरा तो ये हो गया. आपको इन सब पे ध्यान ही नहीं देना. जस्ट गो टू अ कॉर्नर, कीप रिमाइंडिंग योर स्टोरी अगेन एंड अगेन. मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर पहले फ्रेशर्स की ग्रुप को बुलाया जाता है, देन द स्क्रीन आउट्स एंड रिपीटर्स, और देन मिक्स मेनी टाइम. तो दैट इज द यूजुअल सीक्वेंस. कभी कभार उल्टा भी होता है कि नो रिपीटर के ग्रुप को पहले बुला लिया जाता है. इट डजंट मैटर, आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स मिलेंगे, एंड उसमें आपको जितनी बार हो सके, आई मस्ट से जितनी बार, बिकॉज कितनी भी प्रैक्टिस कर लो दैट इज लेस, ताकि आप जरा सा भी नर्वसनेस फील ना करो व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 3 असेसर्स. आपसे जितनी बार प्रैक्टिस हो सकती है आप करो. अगर आपको बहुत बार होता है, आपको 1.5-2 घंटा लग जाएगा इफ यू आर इन द लास्ट ग्रुप. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग योर स्टोरी. आप एक बंदे को पकड़ लो और बोलो कि भाई तू अपनी स्टोरी पहले प्रैक्टिस कर, मैं करूंगा, देन वी विल लिसन टू ईच अदर. वो तुम्हें फ्लॉज बताएगा, टाइमिंग में फ्लॉ, या फिर तुम अटक गए, तुम्हें पता लगेगा अरे यार इस पॉइंट पे अटक रहा हूँ. फिर वो भी बताएगा, तुम भी उसको बताओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन. देन आफ्टर 10 मिनट्स आप दोनों ने फिर से दोबारा से नरेट किया. इससे क्या होगा, वो आपका ग्रुप का, आपको उसकी स्टोरी पहले पता लग गई, एक चीज तो ये हो गई, चलो कंफर्म. बट मेन थिंग इज आपकी प्रैक्टिस हुई, आपकी टाइमिंग की प्रैक्टिस हुई, आपको पता लग गया आप कहाँ पे बार बार रुक रहे हो, देन यू kept practicing that again and again. ठीक है. डोंट एवर थिंक अबाउट आपकी स्टोरी कैसी गई कैसी नहीं हुई, वो सब अब बात की बात है. जो हो गया तो हो गया. राइट नाउ जस्ट थिंक ऑन द नरेशन. ओके, सो इन नरेशन आपको कोशिश ये करना है टू एंड इट बिटवीन 45 to 1 minute. अगर आपके बैच का ज़्यादा होगा, मतलब अगर रिपोर्टिंग ज़्यादा होगी, देन समटाइम्स इट कैन बी कि आपको 45 सेकेंड से मिले, एंड अगर नॉर्मल है तो इट इज़ 1 minute. तो यू हैव टू कीप इट दैट इन माइंड दैट यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अडेप्ट करना है. अगर उन्होंने बोला 45 सेकेंड, you have to know that या तो आपको तेज बोलना पड़ेगा, या और either you have to cut down some points, और आपको प्रैक्टिस ही ऐसी करनी है कि आप 45 सेकेंड्स में खत्म कर दो. ओके, so that must be in your mind. Now how you can narrate your story. So you can use for introduction you can use friends or the gentlemen, the cadets friends or the gentlemen mostly. And how you can start that, friends in the picture I perceived, or there can be different starters as well, but what I followed is that, friends in the picture I perceived
So these many characters, उनके मूड के बारे में बता दिया, age is this and gender is this, action of my story is this. It will only take you 5 to 7 seconds only. आपको जल्दी जल्दी बोलना है. Friends, in the picture I perceive 5 characters, all of them in positive mood, age, life, weight, and this, gender is this, action of my story is this. So 5 to 10 seconds में ये खत्म. Then you will start your story जहाँ से आपने स्टार्ट की थी, क्योंकि आपकी स्टोरी में भी पहले एक इंट्रोडक्शन था हीरो का एंड व्हाट दैट वाज डन. तो उसके बाद से यू हैव टू प्लान आउट इन योर नरेशन दैट फर्स्ट दिस वाज द प्रॉब्लम. सो राहुल ही वाज गोइंग, लाइक अगर हम एग्जांपल है, राहुल ही वाज गोइंग टू द was just going to his college, and when he saw that there was problem in his society, electricity जो भी हो, या फिर वो एक सोसाइटी में रह रहा था, there was problem in the electricity. Therefore what he do, जो आपके actions होंगे, whether he wrote down an application और या फिर RWA, which is basically at every place in each and society. और अगर विलेज में तो विलेज के सरपंच को या फिर लोगों को, ब्लॉक मेंबर्स को बताया, एंड दे ask the authorities as well that why the issue is happening, and जो भी आपका एक्शन होगा, तो आपको इसको विद इन 35 to 40 सेकंड्स में खत्म करना है, बिकॉज ये फर्स्ट 10 सेकंड्स वर ऑफ 5 to 10 सेकंड्स वर ऑफ इंट्रोडक्शन. तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्चुअली होता क्या, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ सेमी सर्कल, अगर आप फर्स्ट हो तो ठीक है, that you spoke out your story and then you feel relieved. वरना धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चांस पास आ रही होती है, आपकी दिल की धड़कन तेज होती जाती है. जब आप उतरोगे तो तीनों जो सामने बैठे रहते हैं फट जाती है, हर एक कैंडिडेट की फट जाती है, वो चाहे प्रीवियसली रिकमेंडेड ही क्यों ना हो, तब भी अ बिट ऑफ नर्वसनेस इज एवरीथिंग. बट वही ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी बार आप कर सको. आपने अपनी स्टोरी नरेट की, देन आपने दूसरों की स्टोरी सुनी. वाइल नरेशन, ये ध्यान रखना, लिसनिंग टू अदर स्टोरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो कि आप अपनी स्टोरी में ही इंडल्ज इतना हो जाओ, जब आप उस सेमी सर्कल में बैठे और बाकी सब अपनी स्टोरी नरेट करें कि आपने सुना ही नहीं बाकी क्या कह रहे हैं. डिस्कशन के वक्त आपके पास अपनी स्टोरी के अलावा कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा. इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों की स्टोरीज को भी सुनो. बिफोर एंटरिंग दैट रूम आपको जितनी प्रैक्टिस करनी थी आपने कर ली. आफ्टर दैट जस्ट कीप काम, टेक डीप ब्रेथ, दैट्स ऑल. आपको अपने स्टोरी पूरी दिमाग में रिमाइंडेड है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है. इट शुड नॉट बॉदर यू दैट मच. उसके बाद यू शुड फोकस ऑन अदर स्टोरीज ऑल्सो. ये नहीं कह रहा आपको पूरी स्टोरी रटी होनी चाहिए ईच कैंडिडेट की, नहीं, बट आपको ये पता लगना चाहिए he has written that idea and that idea is better than others or better than mine, we can go with it. उसके कोर्स ऑफ एक्शन ये पॉइंट थे, ये एक्शन था, एंड दैट वाज बेटर देन माइन, और इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉमन स्टोरी. इट वाज मच मोर रेलेवेंट, इट वाज मच मोर प्रैक्टिकल, जो भी पॉइंट हो, बट इट शुड बी इन योर माइंड. और वो तभी होगा जब आप ध्यान दोगे टू अदर्स नरेशन के लिए, एंड ये आपको डिस्कशन में बहुत काम है. देयरफॉर नरेशन की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए. व्हाट यू कैन डू एट होम, आपने स्टोरी लिखा, स्टोरी को आपने फिर 5 मिनट के लिए अपना पेज हटा लो और कॉपी हटा लो जहाँ पे भी आपने लिखा, बिकॉज उधर क्या होता है, अगर आपका काफ़ी टाइम बाद आया नरेशन, तो आपको एक बार कॉपी दे दी जाती है जो आपने लिखी है. मान लो 2-2.5 घंटे बाद आया, तो आपको एक बार कॉपी दे दी जाएगी, so that you will be able to look again and then you will start your narration. Therefore क्या करना है, you only give 5 to 10 minutes to yourself after writing the story. Go in front of mirror या फिर किसी और के पास चले जाओ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, and then start narrating your story. धीरे धीरे आपको पता लगेगा कहाँ फ्लॉज है, टाइमिंग में प्रॉब्लम है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है. इट विल बी very able to, you will be very able to see the problems which you are facing, and उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टू प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम. रोज 3-4-5 जितने लिख सकते हो स्टोरीज लिखो. मैं तो कहता हूँ टैग का तो एक पूरा डोजर आई यूज टू डू when I had 1 month only. So I completed very much and I practiced very much of stories and I narrated it as well. तो जितनी स्टोरीज लिखोगे, जितना नरेशन करोगे, उतना कम.
therefore start doing in it, and ग्रुप्स भी बना लो, या फिर इफ ऑफलाइन इज पॉसिबल देन ये तो बहुत ही बढ़िया होगा, बट इवन इन ऑनलाइन listen to other stories, write your story, narrate it confidently. Okay, yeah. In Mavericks, always there is a GD, or each day there is a task as per your weekday. So you can follow that, and it will help you a lot. Because उससे क्या होगा, आप सिर्फ खुद की स्टोरीज ही नरेट नहीं करोगे, दूसरों की भी सुनोगे और उनका नरेशन भी जान लोगे, और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप विदाउट एनी नर्वसनेस विल बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ असेसर्स, नहीं तो आप नहीं बोल पाओगे। ओके, तो यू शुड कीप इन माइंड आपका क्या स्ट्रक्चर था, उसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग नरेशन। एक इंट्रोडक्शन होगा ऑफ योर स्टोरी और अबाउट योर कैरेक्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर कैरेक्टर्स, then what was your theme and all the action, and then in the same structure, introduction, then the problem, actions or solutions, and what was the outcome. That's all, and in the end you can say thank you. So as you say thank you, it will be meant that you have completed your story. There are two things, अगर आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, मोस्टली जीटीओ हमेशा आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जीटीओ से दैट इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर स्टोरी, यू कैन कंप्लीट, और समटाइम्स दे से यू कैन आस्क एंड कंप्लीट। तो आपको इसलिए इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर उसने बोला है यू बी ओनली एबल टू कंप्लीट द स्टोरी व्हाइल नरेशन इफ यू आस्क, तो आपको पूछ के ही करना है, इफ नॉट देन डोंट डू इट। ओके, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं तोड़ना है। तो अगर आपको लग रहा है इससे आपका डिग्रेड हो रहा है परफॉर्मेंस, ओके, बट यू डोंट हैव टू not follow the or about the instruction. That is from my side for the narration. Then now I discuss. Okay, thank you Gautam bhai. For narration part, I also used to do the same, that जो भी बीच में टाइम मिलता था आफ्टर टेकिंग माई पेपर एंड गोइंग टू दैट रूम, उसमें आई यूज टू रिपीट माई स्टोरी कि हाँ ये लिखा है, ये लिखा है। एंड इफ़ यू प्रैक्टिस then you will not write a bad story. It may be a very good story or it will be a good story. It will not be a bad story if you practice. So you listen to other story also, and you can exchange कि हाँ यार तूने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, and उसको सुनाओ, तुमसे सुनो, and you can find out flaws. Once you enter that room and you sit in that semicircle, the narration becomes more important for those candidates who were not able to complete their story on that paper. क्योंकि जिन्होंने लिख दिए, that they only have to then show that yes, I can speak in front of people, I am confident, and those all things. But those who were not able to complete, उनको ये भी दिखाना होता है yes that I had the ideas, but due to something which should not happen to you at least, because you will be practicing, तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस कि हाँ यार अगर बोला है कि पूछ के कंप्लीट करो, तो देन यू आस्क एंड देन कंप्लीट। एंड इफ दे से दैट यस, जो नहीं कंप्लीट कर पाया था दे कैन कंप्लीट, देन यू कैन डायरेक्टली गो एंड कंप्लीट दैट। एंड कीप इन माइंड दैट द टाइम इज वेरी लिमिटेड, 1 minute is very limited time. Once you start practicing, you will get to know yourself, you will realize yourself that यार बहुत improvement चाहिए यहाँ narration में। And one thing that once you complete your story, then you listen to others, especially those those stories which somehow link to your stories, that have similar themes. जैसे if you have written about social awareness, then और भी लोग होंगे ना जिन्होंने लिखा होगा कि यार social awareness, it may happen that they may be spreading social awareness on new COVID variant, and you may be spreading some social awareness on virus, polio, something like that.
if they are two students or something like that. So you can then correlate in the discussion part. You can say that yes, as chest number this also says in their stories that we have social awareness, and you can support your point and mix with others and have a discussion, and you can most importantly take those candidates to your side. They will not be then speaking against you. And listen to other story, and if you are not listening also, then at least act कि यार मैं सुन रहा हूँ. It is not कि हाँ ध्यान ही नहीं है. And look at the group. Don't look at the assessors. They will also be telling you this, but make a habit that you take a look at the group end to end. If you are sitting in the middle of the semicircle, you see both the sides कि हाँ I am addressing to the group, like the proper addressing कि हाँ इस सबसे बात कर रहा हूँ मैं. And avoid fumbling, because you should give your best chance, best shot at that. So narration is important, very important. And then discussion, that okay, we will discuss about discussion later. Sachin? Okay, greatly. Okay, nicely covered by both of my former speakers. तो नरेशन की हम बात कर रहे थे, तो नरेशन की प्रिपरेशन हम घर पर कैसे कर सकते हैं? दैट इज़ बाय सिंपली प्रैक्टिसिंग, एंड इट हैज़ बीन कवर्ड ऑलरेडी इन डिटेल. और फिर हम बाद में जब निकलते हैं तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, गौतम भाई had told this already. So there is also some aspect in narration that not only your words when you are speaking are observed, but also how you are behaving, where you are looking at, how your facial expressions are, and this kind of non-verbal communication is also being observed there by the psychologist, interviewing officer, or GTO. So you need to make sure that you are in a jolly mood and you are not showing tensions on your body or your facial expression. You have to be completely present and happy and acceptable and acceptful for the moment. What I mean is you have to be a sant. Okay, जिस टाइम पे तुम डिस्कशन हॉल में जा रहे हो तो you need to be happy, you need to be smiling. और अगर नहीं मन कर रहा है स्माइल करने का then still do, क्योंकि एक चीज होती है जब हम खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, बट इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन दैट इफ यू स्माइल, इफ यू फेक अ स्माइल, देन आप खुश हो जाते हो. सो फेक अ स्माइल, ट्राई टू रिमेन हैप्पी, और जब जाके अपनी सीट पर बैठो तो एक दूसरे को स्माइल करते हुए आई कांटेक्ट बनाओ. ओके Okay, so for after making good eye contact, taking your seat, फिर आप जब पूरा ग्रुप स्टोरी नरेट करे तो सबको जेन्युइनली सुनो और जेन्युइनली स्माइल करते हुए सुनो जब जब जरूरत हो. ये नहीं कि वो आग लग रही हो तो स्माइल करके नोट कर रहे हो. तो मतलब सुनो, आई कांटेक्ट बनाओ, नोट करो और जेन्युइनली सुनो उनको. ठीक है, जब तुम्हारे साइड वाला बंदा नरेट कर रहा होगा, योर धड़ विल increase by many times, multiple folds. तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? ट्राई टू फोकस ऑन हिज स्टोरी. सबकी स्टोरी ऐसे सुनो कि यार सब क्रिएटिव तरीके से अपनी अपनी नई फिल्म की स्क्रिप्ट सुना रहे हैं. तो उन फिल्मों को अच्छे से सुनो, इमेजिन करके देखो. और जब तुम्हारा टर्न आए तो हाँ, जब तुम्हारे साइड वाला बंदा बिल्कुल नरेट कर रहे हैं तो व्हेन ही इज अबाउट टू फिनिश तो डी एंगेज करो और थोड़ा खुद को ध्यान में लाओ कि मुझे क्या क्या करना है. कहीं हो रहा हो गुड मॉर्निंग तो बोलो गुड इवनिंग जेंटलमैन. सो प्रेजेंट रहो जिस टाइम पे तुम्हारा नरेशन है, और पूरे ग्रुप को देखते हुए, स्माइल करते हुए, नोट करते हुए, नहीं नोट नहीं करना, जिस टाइम पे तुम नरेट कर रहे हो आई कांटेक्ट बनाना है सबके साथ और पूरे ग्रुप को अच्छे से अपनी स्टोरी सुनानी है. एंड तुमने प्रैक्टिस की होगी तो अच्छे से तुम स्टोरी अपनी सुना पाओगे. फिर थैंक यू बोल के विथड्रॉ कर लो. विथड्रॉ करने का मतलब है जिस टाइम पे तुम अपनी स्टोरी सुनाओगे तो योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी अटेंटिव. अटेंटिव कैसी रहती है कि हम थोड़ा सा आगे बेंड करते हैं और फिर सबके साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं. जब हम स्टोरी थैंक यू करके बैठते हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्सिंग तरीके से पीछे हो जाते हैं.
तो वैसे ही फिर अगले की स्टोरी सुनने शुरू कर दो। एंड ये हुआ नरेशन पार्ट के लिए। और बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छा प्रभाव होता है दैट एसेसर्स, तुमने कई बार देखा होगा अगर गलती से तुमने आई कांटेक्ट बनाया है किसी एसेसर के साथ, आई हैव डन दैट एंड आई आल्सो गॉट स्क्रीनड आउट 4 टाइम्स। सो बहुत मिस्टेक्स की, बहुत सीखा। तो अगर तूने गलती से आई कांटेक्ट बनाया है तो वो सिर्फ जो बंदा नरेट कर रहा है उसको नहीं देखते, दोज हु आर साइलेंट दे आल्सो ऑब्जर्व देम। क्यों? क्योंकि जब बंदा साइलेंट होता है तो वो नॉन वर्बली भी बहुत कुछ बताते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। बिहेवियर इज सच अ थिंग विच कैन नॉट बी कंट्रोल, वो होता ही है अपनी बॉडी लैंग्वेज में। सो ट्राई टू बी हैप्पी और आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप पॉजिटिव रहेगी। So that's all from my side about narration. So Gautam, we can move ahead towards discussion now. Yes, if any kind of doubt you guys have, please ask us. Then we'll move to discussion in the chat section, please. If any kind of doubt. No doubt? Great, we were good then. Okay. So we did our best, and that's no doubt. Okay. So as mostly covered about narration, that maintain eye contact. क्योंकि क्या होता है काफी बार लोग आई कांटेक्ट दिखाते हैं कि रखा है, बट दे डोंट हैव दैट। वो बस ऐसे ऐसे देखते जाएंगे एंड दे वोंट इवन लुक एट द आई। सो डोंट डू दैट, लुक इनटू आई टू आई to each of the candidate if you can, and narrate the story. Now let's move to the discussion part. So the narration in the discussion part, I would say, is the X factor of the PPTT part. Why? Because at certain point आप भी कम नहीं हो, आपके सामने वाला बंदा भी कम नहीं हो। अगर दोनों ने प्रैक्टिस करता है, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, उसने प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई इशू नहीं। बट फॉर एसएसबी अब कंपटीशन इतना हाई हो गया, ईच एंड एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग, ईदर टेकिंग कोचिंग और फॉलोइंग पीपल एज रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो कमी कहाँ पे, मतलब जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन में पता लगता है। वाई? बिकॉज उसने भी एक अच्छी स्टोरी लिखी, आपने भी एक अच्छी स्टोरी लिखी, उसने भी एक अच्छा नरेशन दे दिया, आपने भी एक अच्छा नरेशन दे दिया। इन डिस्कशन कौन ज्यादा प्रैक्टिकल रहा, कौन ज्यादा ग्रुप को अग्री करवा पाया है, कौन ज्यादा अडेप्टेबल रहा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी आए, बट आपने आइडियाज दिए कॉमन स्टोरी को, ग्रुप आपसे अग्री किया या नहीं किया, देन हाउ डिड यू बिहेव एट दैट पॉइंट, एंड और अगर किया तो आपने कैसे कन्विंस किया ग्रुप को आने के साथ, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और वो समथिंग विच यू कांट प्रिडिक्ट, दैट इज द थिंग। अब जितनी बार डिस्कशन करोगे उतनी बार आप में अलग अलग इश्यूज आएंगे। आप अलग टाइप के पीपल के साथ डिस्कशन करोगे, अलग टाइप का आउटकम निकलेगा। अब डिफरेंट टाइप, तो इट यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप मेंबर्स यू विल हैव। जस्ट अ सेकंड। Yeah. So you can't predict what kind of group members you will have. Therefore आपको अडेप्ट करना है कैसे भी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है कि ग्रुप एक इररेलेवेंट और इम्प्रैक्टिकल स्टोरी की तरफ ही जा रहा हो, आपको उनको समझाना है। नो, व्हाट आई बिलीव ये थोड़ा ऐसा होगा, आपको रीजन आउट करना है। यू हैव टू कन्विंस। और आप कन्विंस कैसे कर पाओगे? अगर आपके पास प्रॉपर रीजन है। प्रॉपर रीजन है तो सामने वाला बंदा भी पागल नहीं है, उसको भी समझ में अगर हाँ यार ये स्टोरी थोड़ी प्रैक्टिकल होगी, रेलेवेंट होगी रादर देन दिस स्टोरी। ओके, बट तब भी अगर ग्रुप जाना चाह रहा है, यू लीव इट। व्हाई? क्योंकि आप डोंट गो अगेंस्ट ग्रुप। आपने अपना बेस्ट ट्राई दिया कि यस आई वांटेड टू सेव यू गाइस, बट अगर आपको भाड़ में ही जाना यू गो, नो प्रॉब्लम, बट कभी भी किसी के अगेंस्ट मत होना। Why? Being humble is the best thing you can do there. Being humble, why? मान लो एक ऐसा पॉइंट आता है डिस्कशन में that is such irrelevant और
वो कहीं से उसका स्टोरी का लेना देना नहीं है। व्हाट यू गोना डू, आपको ये नहीं बोलना है डिसएग्री टू, आपको उस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देना है, जस्ट इग्नोर दैट। आपको क्यों उस पर ध्यान देना है? यू हैव टू, पहले ही आपके पास इतना कम टाइम होता है डिस्कशन में। वो बोलने को कहते हैं 10-15 मिनट, 5 मिनट भी नहीं होते हैं इन रियलिटी। क्यों? सभी बोलने लगने कभी एक बार, ठीक है, और आधा टाइम फिर हाफ हाफ ग्रुप में डिवाइड हो जाता है कभी कभार। तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपको फोकस ही नहीं करना है गलत चीजों पे, आपको बस इस पे फोकस करना है किसी तरह बस। व्हाट इज योर मेन थिंग? मेन थिंग इज कि आपकी ग्रुप की एक कॉमन स्टोरी हो। तो आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है कि ग्रुप की एक कैसे भी कॉमन स्टोरी बन जाए अच्छी सी, ना कि I didn't like your point, or gentlemen, I disagree to your point. There's nothing about disagree. Why do you have to disagree? अगर आपको कोई पॉइंट जोड़ना है, yes I would like to, अगर आप अग्री कर दो, that is the different thing. आपने बताया कि yes I agree to your point, आपने अफेक्शन दिखाया, आपने दिखाया that yes, अपने अप्रूवल दिखाया कि हाँ ये पॉइंट वैलिड लगता है मेरे को भी एज ए ग्रुप मेंबर, और अगर मैं भी होता तो भी मैं ये पॉइंट ले जाता, और उसके साथ आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। आई एग्री टू दिस पॉइंट एंड ऑल, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट टू इट, और आई वुड आल्सो लाइक टू मॉडिफाई इट, और आपने अपना पॉइंट बता दिया। तो जैसे डिस्कशन स्टार्ट होता है, व्हाट आई थिंक कि आप पहले 2-3 सेकंड शांत रहो। क्यों? क्योंकि इधर योर ग्रुप कैन बी डल, अगर आप फ्रेशर हो, वैसे अब तो बहुत कम ही होता है ऐसा, बट इट कैन बी कि इफ यू आर एज अ फ्रेशर गोइंग एज अ फ्रेशर, दैट ग्रुप इज वेरी डल और ज्यादा बोल नहीं रहे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे ग्रुप को साथ में लीड करके चल सकते हो। डोमिनेट नहीं करना, लीड करना। आपने दूसरों से भी पूछना है पर खुद के पॉइंट देने। और जब डल ग्रुप होता है और आपका नरेशन जब एक बार कॉन्फिडेंटली जाता है ना, देन आपके ग्रुप मेंबर्स, आपकी स्टोरी और नरेशन से आपके ग्रुप मेंबर्स को आइडिया लग जाता है, और आपको भी दूसरे लोगों के बारे में आइडिया लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल दे हैव। ठीक है, तो उसका आपने यूज करना है। When you spoke your narration confidently and without any flaw, you are one of the best in the group. And after being one of the best in the group, you have to lead the group in the best way. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? You can add the point. आपको सीधा अपनी स्टोरी नहीं बतानी है, बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी इज वन ऑफ द बेस्ट, आपको जब सुनोगे आपको पता लग जाएगा, तो you have to push about it. बट अगर ग्रुप नहीं मानता है, यू शुड बी ओके विद दैट, एंड देन आपको ग्रुप की स्टोरी के साथ एग्री करना। नेवर गो अगेन। बहुत बार क्या होता है, वंस द ग्रुप डिस्कशन इज डन, द जीटीओ आस्क्स कि डज एवरीबॉडी एग्री टू दिस स्टोरी? नेवर से नो। चाहे तो कुछ मत बोलो, डोंट इवन से, बट कुछ मत बोलो इज बेटर देन सेइंग नो, बिकॉज ग्रुप हैज डिसाइडेड, majority has decided, okay, no problem, that's the best answer. And if the group is not done, then you have to give points when either, क्या होता है कि या तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे अगर ज्यादा लोग बोल रहे तो, एट दैट पॉइंट हाफ ऑफ ग्रुप हो गया, तो आपको थोड़ा काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, आप पॉइंट्स दे पाते हो क्योंकि सिर्फ 6-7 बंदे होते हैं। देन यू आर एबल टू गिव द पॉइंट, एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द पॉइंट, तो दूसरा हाफ क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ सुन रहा होता है, तो वो भी आपके आइडियाज को समझ पाते हैं और सुन पाते हैं, और अगर आपके आइडियाज प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट है, इवन दे कैन कंक्लूड इन देयर स्टोरी। बहुत बार हुआ व्हेन आई वाज इन भोपाल, जब मैं फर्स्ट में स्क्रीन रिकमेंड हुआ, मेरे हाफ ग्रुप ने मेरी स्टोरी नहीं ली, या फिर मेरा प्रैक्टिकल मेरे आइडियाज उसने नहीं लिए, बट अदर ग्रुप ने मेरी स्टोरी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड स्टोरी ली थी, एंड आइडियाज काफी ज्यादा सिमिलर थे। इट डजंट मैटर, बट आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो ग्रुप मेंबर्स को, दैट इज द इशू। आपकी स्टोरी नहीं ली, नो प्रॉब्लम, बट आप ग्रुप को साथ में ले जाके लीड कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज नीडेड। आप अडेप्ट कर रहे हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अगर किसी ने बोला आई डिडंट लाइक योर पॉइंट, ओके जेंटलमैन, नो प्रॉब्लम, पर आपको नहीं बताना है कि आई डिडंट लाइक योर पॉइंट एट ऑल, चाहे कितना ही खराब पॉइंट हो, जस्ट इग्नोर इट। काफी सारे बंदे में चिल्लाते जाएंगे, बोलने ही नहीं देंगे, डोंट इवन लिसन टू दिस।
So what you have to do, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2-3 सेकंड स्टार्टिंग के होते हैं, आपको देखना है ग्रुप किस लेवल पे, पूरे बंदे एक साथ चढ़ रहे होंगे, यू हैव टू कीप काम, क्योंकि G2 अपने आप शांत कराएगा, देन यू हैव टू कीप। आपको एकदम से चौधरी नहीं बनना है पूरे ग्रुप का, G2 विल सेटल इट आउट। अगर आपको लग रहा है इट कैन बी मैनेजेबल, एकदम ज्यादा नहीं है, बस 3-4 बंदे ज्यादा एक साथ बोल रहे हैं, यू कैन स्पीक ओनली वन, दैट एक बार ही ठीक है कि gentlemen, we will be able to discuss it one by one, that would be better to come on an outcome। एक बार बोल दिया you have done your work, उसके बाद आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। Focus on giving points। Yes, agree to disagree, clearly written message। Therefore, ज्यादा आपको किसी से डिसएग्री नहीं करना, बी हम्बल, गिव एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। अब ये नहीं कि किसी दूसरे को बोलने नहीं देना, अगर आपको लगता है किसी दूसरे को मौका नहीं मिला, यू कैन ऑल्सो स्पीक, लेट जस्ट नंबर दिस ऑल्सो स्पीक अबाउट द पॉइंट। आप दूसरे को मौका दे रहे हो, दैट वुड बी इम्प्रेसिव फॉर द नॉट ओनली फॉर द ग्रुप मेंबर्स बट ऑल्सो द एसएसएस। दूसरे की स्टोरी का सीधा पॉइंट बोल दिया हमने, आई वुड लाइक टू एट द पॉइंट ऑफ just number 15 story that he mentioned this, and it was much relevant and practical, and I think that would be the better। So that would be the X factor कि what you did different from others। अपनी स्टोरी का पॉइंट सभी बोलेंगे, आपको ग्रुप स्टोरी के लिए जाना है, ना कि अपनी स्टोरी के लिए। ओके, दैट इज द थिंग। अपनी स्टोरी के पॉइंट सभी बोलेंगे, आपको ग्रुप की स्टोरी के लिए स्टोरी पॉइंट्स देने, ना कि अपनी स्टोरी की। दैट इज द थिंग। So that's all about the discussion part, and if I forget anything, then Sachin and Aditya will add, or if I get to know about some ideas, I will talk about it later. Now Aditya. Okay, thank you, Gautam. So first, I would like to highlight like why we are saying that observe the picture carefully and write the story accordingly. So once you have observed the picture minutely and then wrote a story based on that, so then in the discussion you will be able to give the points that why you have written this story and what is the main motive behind it. Like if you saw a broken glass in some picture and you are writing a story, like let's say that it is you are rescuing, your hero is rescuing someone, so you can then give the point to the group that gentleman, in the picture it was clearly seen that the glass was broken and he was trying to get a chap out of the house or something like that. So when you give reasons, like in the picture it was like this, so I have wrote this and this and this, and these are my reasons. So then the group will also listen and say ki yes, yeah, this can be a better idea for the story. And everyone writes the story which is best according to them. अगर वो उसके लिए बेस्ट है तभी वो स्टोरी लिखा है. So that is the same what you have done. If you have written a story, then first try to prove that yes, why you have written. I am not saying that जबरदस्ती बोलो कि यार my story is best, but if you can add a point here and there, यार I saw this, because you will be remembering that I saw this, that's why I wrote this story. So you will be able to contribute. हाँ यार this is this, so I have written like that. कि यार दो कैरेक्टर्स थे, एक के हाथ में हथौड़ा था तो वो कारपेंटर हुआ, तो वी कैन टेक दैट कि अगर सब बोल रहे कि ही इज गोइंग टू, ही इज अ सोशल वर्कर, सो यू कैन मेक हिम लाइक कि हाँ इसके पास ऐसा था, हिज प्रोफेशन, इफ योर ग्रुप इज डिस्कसिंग अबाउट हिज प्रोफेशन, यू कैन टेल दैट कि यार ये था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन. तो वो ज़रूरी होता है. एंड द प्रॉब्लम इज वंस द GTO सेज दैट यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन, everyone just start rushing, they start speaking, and as Gautam Bhai said, keep calm. And if you see that after 5 or 10 seconds also GTO is not telling them to stop, then what I have done this time, it happened to me that the whole group started speaking. Every time it will happen to you also, it will happen. यार सब बोलने लगेंगे साथ में, सबको सेलेक्ट होना है यार, बोलेंगे नहीं तो सेलेक्ट कैसे होंगे. So you start discussing with those, like in the narration part you heard
कि यार इसकी स्टोरीज की थीम ना मेरे से मैच होती है. So you start discussing with those. You say that gentlemen, I agree to your point. Keep the eye contact so that he also listens to you. कि हाँ, this guy is agreeing with me, and you can have a discussion with those 3 or 4 guys. और what I did was, मेरे तो बगल में ही थे 3-4, तो I discussed with them only. But if the GTO don't interrupt, then only you do it. But first you try to stay calm here. Usually what happens is they divide the group in two and then have the discussion separately. And if you have written the story उस समय सोच के पिक्चर देख के, then you will be able to contribute बहुत बहुत ज़्यादा कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, that's why I have written. And be acceptable. अगर किसी ने अच्छी स्टोरी लिखी है which is better than you, accept it. Try to modify it कि हाँ ऐसा भी था तो this can also be. And what I used to do if my point was accepted and someone tries to cut it down or modify it, so what you can do is you can say that gentlemen, as the group has already agreed and we have to come to a conclusion also, then we should move forward. So this shows कि यार वो चटकी वाला काम कि हाँ ग्रुप बंदा ग्रुप को आगे बढ़ा रहा है. It is not कि he is stucking in the same thing. And try to organize your discussion. Don't just start rushing कि we have all seen ये. Don't do that. Because शुरू में ही बताया जाता है कि you have to write the age mood ये. So generally all of the candidates see same number of characters and same gender and age, mood. These are almost same for everyone. So you can start by saying, which is I used to do it, gentlemen, as most of us have perceived in the picture that there were this many characters of age group this, mood of which was this, so we should move forward with that only. So once you get that lead कि now everyone is listening, then you can add that chest number this, and most others also have theme which is based mostly on this. You don't give your theme, but you take out common कि यार ये common था, so we should take this theme to our story, and from here on you can direct the discussion that yes you are telling. And don't forget कि let us discuss themes is not giving a point. ये बस बताना हुआ कि हाँ we should first discuss theme, then course of action, then conclusion. Meanwhile you also add the point कि theme ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पिक्चर में ये देखा था, या फिर most of us have seen this in picture, so we should go with this theme. Like this, give reasons to your everything you say. It should have a reason. It is not that you open your mouth and बस कुछ भी बोले जा रहे हैं. Like some of you will find some candidates will be there who will be like हाँ ये ऐसे. Their story will be just out of the box and they will be pushing their story in that. So ignore them. Don't mess with them. Or discussion, it will not be too long, 5 minutes, 10 minutes most maximum. And try to just contribute. Don't be like I disagree. You don't use in SSB. You forget that disagree is a word. Or I don't agree with you is a word. You just say, yeah, gentlemen, I agree with you, but just want to improve or just want to add like this. Or friends, I agree with you and just want to improve. Like this you can say if you don't agree with someone. और बिल्कुल ही फालतू पॉइंट है तो then don't even say कि I agree with you. बस say कि ignore यार. And at last when the GTO asks कि यार I want the group to nominate someone, don't nominate yourself, don't nominate anyone else also. Just keep sitting there, no problem. Narrating a group story is not a big deal. It can get you screened out, but it cannot get you screened in. So stay away from that stuff. But if like I want that किसी को ना मिले यार, लेकिन अगर नॉमिनेट हो जाते हो और ग्रुप स्टोरी नहीं होती तो डोंट कंप्लीट द स्टोरी. जितना डिस्कस किया, जिससे डिस्कस किया, जस्ट से दैट, से कि सर दिस इज व्हाट we have discussed, may I complete? If you want to complete the story with the 3 or 4 guys you have discussed, then ask, sir, may I complete the story with this. Otherwise leave it. Like I would this time what happened was
हमारे ग्रुप ने स्टोरी डिस्कस की, लाइक दैट वाज नॉट इवन द स्टोरी, हमने बस ये डिस्कस किया कि पिक्चर में 2 कैरेक्टर है, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल एंड someone from the group nominated me कि सर चेस्ट नंबर दिस इज दिस एंड वी वांट हिम टू स्पीक। भाई मैं फंस गया। तो what I told कि sir, as far as we have discussed, like I used this word that as far as we have discussed that there were 2 characters, one was male, one was female, aged around this, and the basic theme of our story is this, और वो उतने पे रुक गया। GT was like, okay, you can go. So don't nominate yourself. It is a heavy task. It may happen that the group has discussed something else and you go on with the flow. So don't nominate yourself. But if you get nominated, don't hesitate. Just go with the flow. It is a better chance. Okay, that's all from my side. Okay. So now it's really hard for me to speak anything, both everything related to discussion. So still, I'll add some minute things that first of all, since now we have discussed about OIR, narration, story writing, and so these all tasks were individual based, where your individual performance mattered. Now this is the point when you have to perform in a group. So it's a group task. So whenever we are talking of any group task, we need to keep ourselves remind that group task means that you are in a group and the group is having a common objective, and that common objective is what binds all the group's member to achieve that. So first of all, your highest priority should be to achieve the group's objective, because it is the thing which is binding you all, and it is the thing which matters at the end when it is asked about the group's performance. तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी बंदे वहां पर बैठे हैं, 8 हो या 10 हो, सब everyone have come for their SSB and they have written what they consider the best story is. So everyone is highly convinced with themselves only. Okay, so ये आपको समझना है कि डिस्कशन में सभी बोलने आए हैं, यू आर नॉट ओनली द वन टू स्पीक देयर, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ग्रुप की जरूरत क्या थी, सिर्फ आपको ही बता देते कि भाई करो सब कुछ. सो कंसिडर दिस पॉइंट कि दिस इज अ ग्रुप टास्क, और ग्रुप is to make a common story, not your story. Okay, so to keep this in mind, इसके बाद अब आगे, so initially what we see that generally all 2 3 4 5 people start, or all the group most of the time start speaking very beginning when the GTO says to start the discussion. So उसके बाद उसमें आप क्या कर सकते हो कि when everyone is barking, shouting, so there's no use of saying gentlemen gentlemen gentlemen. So try to remain calm, और फिर जब वो तूफान शांत हो, तो तूफान की शांति को देखते हुए आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तूफान शांत हो रहा होगा तो सभी की एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, है ना. उस टाइम आप अपनी एनर्जी कंजर्व कर और जब वो सब चुप होने वाले हैं तब आप बोल सकते हो, एंड स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि वो सबको सुनने में अच्छे लगे कि जेंटलमैन वी हैव लिमिटेड टाइम, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, स्पीक वन बाय वन. तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है बाकियों को, और फिर आप ही बोलना स्टार्ट कर दो कि हम जैसे अभी सबने जैसे एज आदित्य हैव मेंशन कि मोस्ट ऑफ अस ये वाली टेक्निक लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद में थ्रू आउट ग्रुप डिस्कशन आप ये चीज ध्यान रखो कि टू कीप द शो गोइंग ऑन इज अ लीडरशिप ट्रेड, क्योंकि जब काम आगे बढ़ता रहेगा और होता रहेगा तभी काम पूरा हो पाएगा. ये नहीं कि आप सिर्फ जैसे बेड बना रहे हो तो बेड का सिर्फ हेड पे ही पूरा दिन या फिर पूरा टाइम लगा दोगे तो बेड नहीं बन पाएगा कभी. हाँ, तुम अच्छा हेड बना लोगे, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट जब आपके पास सोने के लिए कुछ नहीं है. सो ट्राई टू फोकस ऑन होल थिंग कि आपको पूरी स्टोरी बनानी है गिवन 3-4 मिनट्स. तो उसके लिए आपको ग्रुप को आगे बढ़ाते रहना है. छोटी छोटी लड़ाइयों में आपको नहीं घुसना है, आपको शॉर्ट आउट करनी है. यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर. ठीक है, जब छोटी छोटी टच लो, ओके जेंटलमैन, 2-3 जितने भी थे अभी आगे बढ़ते हैं. ओके जेंटलमैन, अगर
if you are going we should go with this social theme, then let us move ahead and add more actions into it so that we can make a good story in our given time. तो आप ये चीज यूटिलाइज कर सकते हो अपने गिवन टाइम और रिसोर्सेज को, और अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हो. रिमाइंड आई एम कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू आर जस्ट नॉट supposed to make a good story, but also in a group you should be your presence should be there in such a manner that you are taking the group ahead and you are managing the group well if they are going into some problem. So ये चीज भी ध्यान रखना. और तो सब बता ही दिया सबने. और डिस्कशन है भाई, थिंक सॉरी लिसन देन थिंक देन स्पीक. नॉट जस्ट पहले से ये सोच के नहीं रखना है कि माई स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी. दूसरों को सुनो, समझने की कोशिश करो और फिर बोलो. और ट्राई टू बी कंस्ट्रक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम. बढ़ाने में फिर और पॉइंट ऐड करो, देन करेक्टिंग समवन और सेइंग कि डिसएग्री करता हूं मैं, यही करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा. टाइम इज लिमिटेड. और also कि you don't have to speak all the time in a group. Even given 3-4 good points, then it's good enough. और जब ये हुआ डिस्कशन के बाद, डिस्कशन में आगे बढ़ाने का मतलब में था जैसे अगर हम थीम और डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रुप को आगे ले चलो कि थीम में एक्शंस. अगर आपने एनफ एक्शंस ऐड कर दिए तो ग्रुप को आगे ले चलो कि इसे कंक्लूड करने पर हमारे कर्मों का फल क्या आ रहा होगा. अगर कर्मों का फल बता दिया, कंक्लूड हो गई स्टोरी, तो देन इतने में टाइम भी हो जाएगा. फिर उसके बाद में जब डीटीओ सर कहे कि नाउ जेंटलमैन डिस्कस एंड नॉमिनेट समवन टू नरेट द कॉमन स्टोरी, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था और सब आपको नॉमिनेट करने वाले हैं, तो जस्ट पोज, स्माइल. ओके. अगर आपको लगता है कि आपको खुद को लगता है कि इस या फिर इस बंदे को, इस चेस्ट नंबर को कहा अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए क्योंकि ये लीडिंग पोजीशन में था या फिर ये कॉमन स्टोरी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा था, तो आप बोलो कि आई वुड लाइक टू नॉमिनेट चेस्ट नंबर 29 because he has given constructive points and he has been involved into the discussion. So nominating and giving due reason shows that you were attentive and you are also having courage to initiate and giving others name over you. So that's also a good thing to do if you have some name or some chest number in your mind. चलो अब दूसरी केस की बात करते हैं. अगर आप स्माइल करते रहो, चुप रहे और सबने आपका नाम ले दिया, चेस्ट नंबर ले दिया, तो कई बार होते हैं कि आई हैव सीन दैट पीपल बैक ऑफ, बोलते हैं नहीं मैं सोचता हूँ कि ये नहीं, ये करना चाहिए. भाई अगर तू सोचता होता तो जब इनिशियली जीटीओ सर आस्क्ड तो बोलना था ना. अभी जब तुझे नॉमिनेट किया गया, देन इट इज योर, देन द बिलीफ ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स शुड बी देयर, और उनके विश्वास पर आपको अब नरेट करनी पड़ेगी स्टोरी, और नरेट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. और नरेट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखो कि अपनी स्टोरी नरेट नहीं करनी होती. डिस्कशन में जो भी चीजें डिस्कस हुई वो इंक्लूड करने की कोशिश करो. और अगेन नरेशन में जब आपने सबका नरेशन सुना तो उस टाइम पे भी ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है कि आपको पहले से पता है स्टोरी में कि औरों की स्टोरी क्या है, और डिस्कशन में लोग वही डिस्कस करते हैं. सो दैट्स सिंपल. आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड्स and speak. And also there are some doubts in the comment section which is irrelevant, but I still want to answer that. Sir, should we take coaching especially for ground tasks even if the financial condition is not good? So I often say this कि the best coaching for SSB is you yourself. And फिर भी अगर आपको कोचिंग जाना है तो there are some institute you can refer to. और अगर ग्राउंड टास्क के लिए कोचिंग करनी है तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ जीटीओ सेशन जिसमें हम ऑनलाइन बताएंगे कि आप किस तरीके से सोच सकते हो जिससे आपको आइडिया आए, और हम उस तरीके से सोच के आपको आइडियाज लाकर और टास्क ऑनलाइन पीडीएफ में सोल्व करवाकर समझाने की कोशिश करेंगे. दो आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू कैन गिव इट अ ट्राई. और अगर देखो टेकिंग कोचिंग और कहीं से ट्रेनिंग लेना इज रियली गुड, और जब आप ग्राउंड पे चीजें कर पाओगे सो इट्स गुड,
it's good that you are getting training or you are getting guidance or coaching from somewhere. तो आप जितना हो सके लेने की कोशिश करो, बट स्टिल it's out of your zone. तो definitely it is not the thing which is going to stop you. I can write it on paper कि ये सिर्फ चीज कि आपने कोचिंग नहीं ली आपको नहीं रोकेगी. There are many candidates from civil backgrounds who clear their SSB at the first attempt. So you just have to be conscious about certain things. और आपकी बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी वहां पर एसेस की जा रही है, नॉट योर एबिलिटी टू प्लेस सम फट्टा बल्ली. ठीक है, तो फट्टा बल्ली से मेरा क्या मतलब था, सिर्फ आपको फट्टा बल्ली लगाना नहीं बल्कि आपको ग्रुप को आगे बढ़ाने में भी आपका कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. और ट्राई टू कंट्रीब्यूट एवरी टाइम. अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो आपके आइडियाज देकर, तो आप दूसरे आइडियाज दे सकते हो कि जेंटलमैन, दूसरे आइडियाज क्या, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपने एफर्ट्स लगाकर कि कोई कैंडिडेट आइडिया बता रहे हैं, यस लेट अस ट्राई दिस वन, तो उसको ट्राई करो आगे भाग के. दैट्स ओके. So I guess I have cleared your doubt. Yes, Gautam. Yeah, so he cleared that out as well. And एक दो बात मेरे को भी डिस्कशन पे कहनी थी कि while discussion एक दो एग्जांपल है, लाइक इन अ क्लास, जैसे ही टीचर आने से पहले क्लास में एकदम पूरा हुड़दंग मची रहती है, स्टूडेंट्स इधर से उधर दौड़ रहे थे, पर जैसे ही टीचर आता है एंड ही सेज टू एक स्केल ही बजाता है बस टेबल पे, तो पूरी क्लास शांत हो जाती है. फिर जैसे उसकी प्रेजेंस के बारे में पता लगता है, द होल क्लास इज साइलेंट. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉइज. तो आपको भी इसी तरह से बोलना है. यू डोंट हैव टू शाउट, बट यू हैव टू बी ईदर लाउड इनफ और द वे यू आर स्पीकिंग मस्ट बी इन सच अ वे दैट पूरा ग्रुप आपको सुन रहा है. When you are speaking, each and everybody is listening to you. And the second thing is don't be repetitive. एक पॉइंट आपने एक बार बोल दिया, पूरे ग्रुप ने सुन लिया, अब आपको दूसरा पॉइंट बोलना है, तभी बोलना. वो पॉइंट रिपीट मत करना बिकॉज इफ यू आर रिपीटिंग यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम. एंड बात रही जो कॉमन पर्सन सिलेक्ट करते हैं टू नरेट द कॉमन स्टोरी, it can either make you or break you. It can do both. अगर आप ready नहीं हो then it will break you. But how you can be ready? देखो, I believe in even in the worst of worst situation, apart from कि अगर story ही ना बनी और even story भी नहीं बनी, तो जितनी बनी थी you will only narrate that. But अगर story बन रखी है then it is somewhat a good luck for you अगर आपको narrate करने का मौका मिलता है. Even if अगर दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था, most of the time stories are such that you can join the both of the ideas in one story. You can add both of the ideas in one story. मान लो एक था कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एक था कि स्कूल में कुछ यू कैन बी लाइब्रेरी या फिर कॉलेज में एनी काइंड ऑफ फेस्ट और ऑर्गेनाइजिंग समथिंग. तो ही कैन डू इन द कॉमन स्टोरी, ही कैन डू बोथ ऑफ देम. तो अगर आपने कॉमन स्टोरी में दोनों हाफ ग्रुप्स की आइडियाज को, एक्शंस को ऐड करके आपने नरेट कर दिया, इट इज अ विन विन. आपका कितना ही गंदा हो सकता है स्टोरी राइटिंग चली गई है और थोड़ा नरेशन भी खराब, बट अगर आपने ऐसा काम कर दिया एट दैट पॉइंट, ईच एंड एवरीबडी विल बी इम्प्रेस्ड एंड इट विल इंक्रीज योर चांस, if not to 100% but 90-95% that you are getting screened in, because आपने exact moment पे when it was needed you worked with your mind and solved the issue. ठीक है, so you can use it in that way also. Yes, अगर दो हाफ ग्रुप्स की अलग अलग स्टोरी थी, you concluded both of them in one. and अगर आपको पूरे ग्रुप में चूज किया जा रहा है फॉर नरेशन, there is a chance, because अगर आपकी सबसे अच्छी स्टोरी लिखी आपने या फिर आपकी स्टोरी रेलेवेंट थी, प्रैक्टिकल थी, आपका नरेशन बढ़िया था और आप देन यू विल बी चूजन और आपको चूज किया जाता है, देन डोंट रन अवे फ्रॉम इट. आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, यूज इट. जो कॉमन स्टोरी बनी इसको बोलो, अगर नहीं भी बन पाई जहां तक बनी उधर बोलो. ओके, बिकॉज रनिंग अवे फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी वो सीधा आप मान लो कि अब फिर अब घर आने की टिकट करा लेना होगा. दैट वोंट वर्क. अगर आपको सिचुएशन दी गई है, यूज इट.
ठीक है. And any kind of doubt, if कुछ एक दो doubts और हैं. Is gentleman necessary? We can say friends. Guys will be very much casual. So guys use मत करना. You can say friends. Friends थोड़ा informal होता है to bring closeness and all. You can also use gentleman, but guys it will be like वो assessors आपके सामने नहीं. So don't use guys. Okay. You can use friends, but don't use guys. That's in my opinion. You should not use. Sir, will you be able to record it? Because in my other days, actually, yes, Nikhil, we are recording it, and hopefully we will upload it too. अगर बाकी सब recording and editing सही रहा तो don't worry about it. Any kind of doubt Yes. in the stage room? I have a doubt, Gautam. Nikhil, where are you from? Because in my area also there is electricity problem and I'm sitting under stars with my laptop. Actually, I am from Rajasthan. He is also. Oh, nice. I'm also from Rajasthan. Okay, so any other Great. doubts, guys? Any other doubts? You can also raise your hand or speak about it if it is relevant. या फिर अगर आपका कोई डाउट छूट गया है पहले, you can speak about it again. I guess no doubt, and therefore we will like to conclude our session. Anything Aditya and Sachin you would like to add, please? And thank you for giving your opinions and time as well to each candidate. Right, that's my word. Thank you, Gautam, and thank you, Aditya, for coming here. And thank you, Gautam, especially for giving me this idea and taking a spearhead on this initiative. Thank you both. Any other doubts? No doubts. Great. We have cleared every doubt of them. Great. So now we can conclude our session. And again, I would like to express my gratefulness to Gautam and Aditya who have come and invested their precious time. And thank you everyone who have joined and made this session helpful by asking doubts and being attentive. Thank you. Good night. Jai Hind. Thank you, guys. Good night, everybody. Thanks, Bailok.